Small apology for late. Anyhow, आज का विषय है हमारा साइंस इन वेदास, यानी वेदों में विज्ञान। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले वेदों के विषय में सबसे पहले कहा था कि वेदों में 4 प्रकार के विषय हैं: विज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान। तो प्राय हम लोग लेते हैं कि ज्ञान कांड का वर्णन मुख्य रूप से ऋग्वेद में है, कर्म कांड का यजुर्वेद में, उपासना कांड का सामवेद में और विज्ञान कांड का अथर्ववेद में। विज्ञान कांड इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऋषि दयानंद के अनुसार परमेश्वर से लेकर तीन पर्यंत विश्व के सब पदार्थों का ज्ञान समाविष्ट है विज्ञान कांड के अंदर। अर्थात इसको हम एक कॉम्प्लेक्स ना समझे, यानी कि ऑल नॉलेज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द गॉड टू इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर इज नोन विद द हेल्प ऑफ साइंस। सो द साइंस इन वेदास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। In the 7th chapter of सिद्धार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद कहते हैं कि जैसे माता पिता अपनी संतान पर कृपा दृष्टि कर उनकी उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्या अंधकार भ्रम जाल से छूटकर विद्या विज्ञान रूपी सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानंद में रहे और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाए। More simplified we will go for this statement that why just as our parents, our well-wishers, our family members, they want our progress for us. In the similar way, Almighty God has given the knowledge of the science of the Vedas for the development, for the progress, for the benefit, for the whole society, so that we must gain the knowledge and progress ahead in our life. This is the main aim of giving this knowledge of the Vedas and the science of the Vedas. The latest commentary done by the Swami Dayananda on the Vedas was focused mainly on science topic. Why Swami Dayananda focused on this topic? Because prior to Swami Dayananda, the main focus of Vedas was like a कर्म कांड की पुस्तक, मीन्स यज्ञ कैसे किया जाए, हवन कैसे किया जाए, यहीं तक ही हम लोग सीमित थे। स्वामी दयानंद का सबसे पहला जो स्टेप था that he first proved that Vedas is not the mere कर्म कांड book. He first said that Vedas is a book of science. There are various types of science Swami Dayananda had mentioned in his works Rigvedadi Bhashya Bhumika, like धर्म विद्या, सृष्टि विद्या, पृथ्वी आदि लोक प्रमाण विषय, आकर्षण अनुकर्षण में ग्रेविटेशनल, प्रकाशीय अप्रकाशीय लाइट साइंस, गणित विद्या मैथमेटिक्स, उपासना, मुक्ति विद्या, नौ विमान आदि। There are various parts, the mechanical science and all other sciences he has mentioned in his book. There are various scholars apart from Swami Dayananda who has claimed about the science in Vedas. First was Satyavrat Samshari. He was the member of Bengal Asiatic Society. He has mentioned that in Vedic times, our country had extraordinary progress. In those days, the science of geology, astronomy and chemistry were called as Adi Devik Vidya, and those of physiology, psychology and theology was known as Adhyatma Vidya. Though the works embodying the scientific knowledge of those times are entirely lost, there are sufficient indication in the Vedic works of those sciences having been widely known in those days. And it is needless to say that the reason why these indications are not understood now is due to the imperfect interpretation of an expositor having no knowledge of those sciences. See, Satyavrat Shamshravi issued this statement in his book known as Traiv Bhashya in 1897. He said about so many concepts of sciences in Vedas, and if we are not able to understand, this is not the fault of Vedas, it is fault of interpretation. But we are not able to get what are the seeds of the knowledge of the science in the Vedas. We must have to decode them. That is what he is saying. And we had earlier a lot of good progress in this field. This is the main.
Similarly, V.G. Vele in his books in 1931 writes that our present anatomical knowledge of the nervous system tallies so accurately with the literal description of the world given in the Rig Veda that a question arises in the mind whether Vedas are really the religious book or they are the book of anatomy or physiology. Means he is very clear. He is saying that I am amazed to read Vedas that I am not able to decide whether Vedas are the religious book or they are the books of science. He was able to decode those mantras and he was able to find about the nervous system in the Vedas. So he issued this statement. And then he said that it is very true, we can surely assume that the ancients were as far advanced in all branches of science we are now. Perhaps they knew much more than we know of scientific subjects and especially of the nervous system of the human body. Similarly, Pavagi in his book Vedic India, Mother of Parliaments 1930 writes, I have shown in brief how the Vedas have justly been deemed to be the real source of our knowledge and एक्चुअली केवल पढ़ने से ही नहीं है, थोड़ा समझने का भी समय लगती है। So the basic motive is only these all persons have said that Vedas gave science. Only one message in clear. पूरा पढ़ भी नहीं पाते इतने में आगे चले जाते। He says that how the Vedas have justified being deemed to be the real source of our knowledge and of the spirit of independence. He has clearly said that Vedas are the real source of all knowledge. And then he says the Vedas moreover is the fountainhead of knowledge, the prime source of inspiration, the grand repository of pithy passages of divine wisdom and even the eternal truth. So he is saying clearly they are the fountainhead of knowledge. They are the basic source from where all the sources of knowledge comes out. And they are the prime source of inspiration. Means Vedas are not even a religious text, they are the text for all sorts of sciences for us, for divine, for wisdom and for the eternal truth. They gives us all. This statement was issued by Pavagi in Vedic India in 1930. अब महर्षि अरविंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। महर्षि अरविंद ने अपनी बुक छोटा ट्रैक लिखा है बंकिम तिलक होते हैं। उसमें महर्षि अरविंद ने ये लिखा है कि स्वामी दयानंद ने वेदों के अंदर जो विज्ञान की और सत्य धर्म के सत्य की बात करी है, ये मेरा मानना है कि आज जो भी समाज के अंदर विज्ञान विद्यमान है, मेरा ये कहना है कि दयानंद जो हैं उन्होंने उसे जहाँ तक समझा उससे कहीं ज़्यादा विज्ञान वेदों में अभी भी विद्यमान है। ये महर्षि अरविंद की स्टेटमेंट है। Means he wanted to say that where the Swami Dayananda has reached or interpreted in his Veda Bhashya about the science in Vedas, he assumed that there is much more ahead to be known for others in the Veda. This statement is a sort of inspiration that what Swamiji has mentioned, this is not the dead end. No, we have to go ahead and find more about the science in the Veda. This is a sort of inspiration for everyone. And then Parsi Dalachand in 1941 says that Vedas is the book of knowledge and wisdom, comprising in the book of nature, the book of prayers, the book of religion, the book of morals and so on. Lastly says the Vedas means wit, wisdom, knowledge, and truly the Vedas is condensed wit, wisdom and knowledge. This last line, condensed word, is again giving a hint that it's having embodied form of knowledge, which is everything for us. So now I will start with my main topic for today. For examples of science in Vedas. I am a medical professional, so I will talk in medical terms. So there is a sukta in Atha Veda. It's having 33 mantras, and in all these mantras, Vedas speaks about anatomy, starting from the brain to the legs, in a question answer format. Like I have given only 2 mantras in this. The mantra says that how the God has made the heels of human, the flesh of human, and how he has fixed his ankles. Who made the opening and well-mounted fingers? Who gave them foot soles and a central station? So we will focus only on this first mantra. He is asking that
It's a question from a person who thinks that how the parts are formed, and this is anatomy. And now the next question comes: you should know how our body parts function. That is physiology. You should know how our body parts are made of. That is biochemistry. Means biochemical reactions that are going in the body. So one mantra explains not even anatomy. Its function comes in physiology. Its composition or the daily metabolic changes which are happening in the body, they come in biochemistry. So one mantra, if you open this, we are straightforward dealing with from body parts from brain to the अंदर यही बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही गई है, जिसमें लिखा है कि who strode in heat floods, turned in all direction, moving diverse and formed to flow in rivers, hasty red, copper hued and purple, running always in Purusha, upward and downward. अब इसको मैं जो है हिंदी में आराम से समझा देता हूँ. समान बहने के लिए उत्पन्न हुए तीव्र लाल वर्ण वाले, बैंगनी वर्ण वाले और तांबे के समान वर्ण वाले, ऊपर जाने वाले, नीचे जाने वाले धाराओं को बनाया है. मीन्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो लाल रंग के वर्ण जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो तांबे के वर्ण के. Deoxygenated blood or pure is going backwards and oxygenated or pure is going upwards. It's a very clear indication how the blood circulates in our body. And Vedas mentioned it's long back before 17th century. This is one mantra which is very clear to understand about the circulatory system of our body. इसी का हिंदी में है. Now, as I am a child specialist, we deal with the babies with the jaundice. तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबको प्राय 60 से 70% बच्चों को jaundice हो जाता है, जिसमें से 8-10 बच्चों को 8 to 10% को हमें नर्सरी में एडमिट करके फोटोथेरेपी देनी पड़ती है. So what is the principle of phototherapy? Is that we give a certain wavelength of light which causes degradation of bilirubin in the body, leading to decrease in the jaundice. यानी जो पीलिया हो जाता है, अगर हम एक लाइट उसमें देते हैं तो जो शरीर में जो पीलिया है, जिसे से बिलिरुबिन लेवल कहते हैं, वो कम हो जाता है. अब वो प्रिंसिपल जो था, हमें वेद के अंदर एक बड़ा अच्छा मंत्र मिला जो कि अथर्ववेद में मेंशन है कि सूर्य की किरणों के सेवन से हृदय के रोग और उनसे जन्य हृदय की पीड़ा भी शांत हो जाती है, तथा सूर्य की लाल किरणों के सेवन से पीले रोग भी दूर हो जाता है. दिस वन मंत्र का अभी मैंने सिर्फ सेकंड पार्ट एक्सप्लेन किया कि जो भी जॉन्डिस बेबी होते हैं उनके अंदर हम आज फोटोथेरेपी देते हैं और वो एक सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं. वो लाइट का ही पार्ट है और वो वेद मंत्र हमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पीलिया उससे दूर हो जाता है. और हम अभी 50 से 100 साल के करीब भी नहीं हुए हैं, हमने फोटोथेरेपी मशीन को बनाया है. अगर हम इस बात को हमारे लोग पहले ही जानते थे. अब इसमें पहला पार्ट है, वो भी हमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि सूर्य की किरणों के सेवन से हृदय के रोग. अब सूरज कब निकलेगा? जिसमें लाल रंग की रोशनी, सूरज की जो सूर्य की लालिमा होती है वो सुबह के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में होती है. और अर्ली मॉर्निंग में आपके जो ऑक्सीजन है, कंसंट्रेशन है नेचर में, वो सबसे अच्छी होती है. तो लाल रंग का जब सूरज निकलता है उस समय की जो वायु है वो हृदय के रोगी के हार्ट पेशेंट में. अब हार्ट पेशेंट में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है. जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी के पेरिफेरीज पे कम जाती है तो किसी व्यक्ति को फैटिगनेस के सिम्टम्स आते हैं. तो आपके सुबह के टाइम में अगर आपके सुबह के टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उठ के सैर करता है तो उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है. और ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड के अंदर जो उसके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है. तो उसके सिम्टम्स जो हैं, जो डीकंजेशन हो जाते हैं, उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं. तो ये वेरी सिंपल कंसेप्ट था कि सुबह हृदय रोगी को सुबह उठना चाहिए. बिल्कुल सिंपल बात है. आज हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको एक ही बात कहता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, प्रमोट योर एक्सरसाइज
eat less salt, live a healthy life. अब उसका भी यही फंडा है कि रात को देर से सोओगे, सुबह देर से उठोगे, तो आपकी बॉडी का BMI जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए वो भी लाइफस्टाइल चेंजेस ही प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ताकि अपने सुबह एक्सरसाइज को डेली रूटीन में लेके आए, कार्डियक एक्सरसाइज को लेके आए, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और आपको सिम्टम्स से रिलीफ हो। और यही बात है ऑडिट फॉर्म में वेद ने कह दी कि लाल रंग की रोशनी जब होती है सूरज की, तब व्यक्ति को जैसे हृदय की रोग की पीड़ा कम होती है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वी आर इजीली एबल टू इंटरप्रेट बोथ ऑफ द थिंग्स कि जॉन्डिस वाले बच्चों को लाल रंग की रोशनी से सही हो जाते हैं और हृदय की रोगी कैसे ठीक होती है। दिस इज सॉर्ट ऑफ वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग मेथड। अब स्टेरिलाइजेशन या ऑटोक्लेव हम लोग मेडिकल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर ओटी से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो अथर्ववेद में एक मंत्र बिल्कुल स्पष्ट आया कि सनरेज से स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। Uprising let the sun destroy, and when he sinks with his beams, the moths that live within the cow. Means इसमें काउ शब्द से दाई शब्द मत लीजिए, काउ का एक शब्द जन्नी भी होता है, एक जगत भी होता है। यानी जगत के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, वे उगते हुए और शाम के समय में सनसेट के टाइम के सूरज से वे डिस्ट्रॉय होते हैं। इस मंत्र का मतलब ये है। अब मेन उसमें सन की जो रेज का जो कंसेप्ट दिया है कि उसमें जो एनर्जी होती है वो ही आपके उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब मेडिकल फील्ड में हम एनर्जी का ही पार्ट है जिसको कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, जैसे कि हम अपने ऑपरेशन थिएटर्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सबको ऑटोक्लेव करते हैं। तो कंसेप्ट वही है, उसको समझाने का तरीका वही है कि सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है, एक एनर्जी का स्रोत है, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करेंगे। अब इसको हम अपने साइंटिफिक रूप में आज यूज करते हैं तो हम इसको साइंस कह लेते हैं। ऑडिट फॉर्म में ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब प्रेगनेंसी एंड इंस्टीट्यूशन डिलीवरी एक बहुत मैटरनल कंसेप्ट है। आज जितने भी डिलीवरीज होती हैं हम लोग पहले सुनते थे कि घरों में हो जाती थी, आज हम प्रमोट करते हैं कि वो सारे की सारे डिलीवरीज हॉस्पिटल में हो। अब आपको सबसे अमेजिंग लगेगा कि वेद के अंदर मंत्र ही है एक पूरा कि गर्भ के पूरे दिनों में गर्भिणी की शारीरिक और मानसिक अवस्था का विशेष ध्यान रखें। माता के प्रसन्न और सुखी होने से बालक भी प्रसन्न और सुखी होता है। एंड लास्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसूति का ग्रह को पहले से ही देश काल और विचार कर रखें। नाउ इफ वी एनालाइज दिस 3 times, our gynecologist will definitely say that Vedas are completely speaking about care in pregnancy. Means if अगर कोई माँ है और वो प्रेग्नेंट है तो अगर उनको कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी सिस्टम की बीमारी होगी, किसी भी तरह की, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डाइटरी प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो बच्चे का बर्थ वेट कम हो जाएगा। ये बिल्कुल नॉन फैक्ट है। इसमें हजारों रिसर्च स्टडीज आती हैं कि मैटरनल हेल्थ, मैटरनल डाइट एंड देयर इफेक्ट ऑन द बर्थ वेट ऑफ द बेबी, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर मदर वेस्टर्न में मदर स्मोक करती है, वेस्टर्न में मदर अल्कोहल पीती है, तो उसका बच्चे पर बिल्कुल साफ इफेक्ट आता है। ड्रग्स लेती हैं, कोकेन वगैरह लेती हैं, तो उनके बच्चों को बर्थ वेट कम होता है। इंडिया में जो पुअर क्लास है उनमें मदर जो होती है वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती, तो उनके बच्चों का बर्थ वेट कम होता है, उनके बच्चों को एडमिट भी करना पड़ जाता है। और दूसरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात जो थी, हमारे यहाँ सुन रहे थे कि गालियाँ आती हैं घरों में बच्चे पैदा करते हैं, जबकि ये तो कहता है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करो। अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को क्यों प्रमोट किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि उन्होंने पाया कि जो डिलीवरी को आपकी हॉस्पिटल में होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम है एज कम्पेयर टू जो डिलीवरी बच्चों के घरों में होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। हम इसको साइंस मान रहे हैं, इस पे स्टडीज करने के बाद हम इस कंसेप्ट तक पहुंचे कि डिलीवरी शुड बी इन द हॉस्पिटल नॉट इन होम्स, जबकि वेद का मतलब हमें साफ ही कह रहे हैं। तो ये एक मैसेज जो है इनको हम समझते हैं तो हम वेदों में विज्ञान के विषय में पहुंच जाते हैं। एंड वन मोर थिंग इज फ्रेश एयर इज गुड फॉर रेस्पिरेटरी डिसीज। ये बात हर कोई जानता है कि जितनी भी बीमारियां रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड से स्टार्ट हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, वे सब की सब ओवर क्राउडिंग नंबर 1,
Number two, with the contact with the other person who is suffering from the same disease. यानी घर के अंदर अगर कोई और व्यक्ति को ये सब इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो उसके आसपास कोई भी रहेगा और अगर छोटी जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो there is full-fledged chances that he or she will suffer from the same disease. तो इसको अथर्ववेद ने बड़े अच्छे रूप में कहा है कि शुद्ध वायु अर्थात प्राणायाम द्वारा शरीर के हृदय में वायु का प्रवेश होना व दूषित वायु का बाहर निकलने से रोग आदि का नाश होता है। तो ये जो एयर क्वालिटी कंट्रोल की हमारे हॉस्पिटल्स में बात करते हैं, कोई भी हॉस्पिटल की जो डिजाइनिंग की जाती है, तो उसके अंदर आईसीयूज में या ओटी में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि हाउ द एयर फ्लो सर्कुलेशन विल बी देयर, कि आपके जो एयर एक तरफ से अंदर आ रही है वो दूसरी तरफ से बाहर निकले, ऐसी व्यवस्था ओटीज में की जाती है जिससे कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो। और यही बात हमारे घरों में भी लागू होती है। अब लोग इसको वास्तु के नाम से कहने लगे कि पूर्व दिशा के अंदर फेस होना चाहिए, विंडो यहाँ पे होनी चाहिए, टॉयलेट इस इतनी दूरी पर होना चाहिए। मेन कंसेप्ट तो वास्तु के पीछे यही था कि आपकी एयर सर्कुलेशन और स्पेस जो है वो ढंग से मेंटेन हो, जिससे कि घर के अंदर बीमारी ना आए। अब लोग उसको सुपरस्टिशंस में ले जाते हैं कि वास्तु विल ब्रिंग लक टू यू। अब व्यक्ति हेल्दी रहेगा तो वो लकी रहेगा ना, अब जो व्यक्ति बीमार है वो अनलकी है। तो ये कंसेप्ट जो था ये आपको कई तरीके से आप इसको एलोबरेट कर सकते हो इन मेडिकल साइंस, इन द वे ऑफ पैटर्न ऑफ डिजीज, इन द वे ऑफ डिजाइनिंग ऑफ होम्स, एवरीवेयर वी अप्लाई दिस पैटर्न। हम उससे इंटरप्रेट यही करते हैं कि वो हमको किस प्रकार से बीमारियों से बचा के रखते हैं शुद्ध वायु। और प्राणायाम के बारे में बिल्कुल सिंपल है कि अगर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, अगर सुबह उठ के हम प्राणायाम करेंगे जिस समय वायु में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं जिन उनको ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगी, तो न्यूरॉन्स की जो हीलिंग एंड ग्रोथ दोनों चीजें हमारी ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर न्यूरॉन्स की माइलिन शीट होती है, न्यूरॉन्स जो दिमाग में हमारे नसें हैं उनके सबसे छोटे पार्ट को न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी ग्रोथ ही हमारे दिमाग को डिफाइन करती है। उनकी ग्रोथ अगर अच्छे से हो रही है तो हमारा दिमाग तेज चलता है, और जितनी हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है उतनी हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उतनी हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। तो वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी वेद मंत्र को मैंने 4 तरीके से अप्लाई करके आपको बताया कि कहाँ कहाँ एक ही वेद मंत्र को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी आयुर्वेद में मैं अभी टच नहीं कर रहा, मगर आयुर्वेद के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल हैं अलग अलग बीमारियों के। क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, मैं एलोपैथिक मेडिकल साइंसेज से बिलोंग करता हूँ, पर मेरा ही मानना है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर सम सॉर्ट ऑफ क्रूड फॉर्म्स ऑफ सेम मेडिसिन व्हिच आर गिवन इन टैबलेट फॉर्म इन एलोपैथिक मेडिसिन। We our need of ours is we have to do more research and we have to establish these all facts. Thank you.